Students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. So today's our topic is bar graph. How to draw bar graph. So to draw a bar graph, step 1 is take axis, x-axis and y-axis. And second step is choose scale. And step 3 is take bars of uniform width and length of the bar depend upon the frequency. अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस इज along the horizontal line and y axis is along the vertical line, and intersection of x axis or y axis is origin, which means x axis and y axis cut at the point origin. Now mark point at equal gap on x axis and y axis. First point, second point, third, fourth, fifth on y axis. First point, second, third and fourth. These points at equal gap. Now second step is choose scale. Scale is written on the right corner of the graph. Scale is depend on the question. 1 unit is equals to 10 or 1 unit is equals to 100 और 20, 40 डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. अब हम ये देखेंगे कि जो स्केल में 1 यूनिट 10 और 1 यूनिट 100 दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग है. 10 का मीनिंग होगा कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं, उनमें क्या किसकी कितने का गैप होगा, 10 का. अगर हमने 1 यूनिट 100 की इक्वल लिया है तो यानी कि जो 1 ऑब्जर्वेशन और सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बीच में कितने का गैप होगा, 100 का. अगर हम 20 लेंगे तो 20 का गैप होगा. स्टेप 3 इज टेक बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. इसका क्या मीनिंग होगा, हमने जो ग्राफ में बार लेने हैं उनकी जो विड्थ होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि सेम होगी. जैसे कि आप इस ग्राफ में 3 बार देख सकते हैं जिनकी जो विड्थ है वो तीनों की विड्थ कैसी है, यूनिफॉर्म यानी कि सेम. एंड लेंथ ऑफ द बार डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी. और जो आप यहाँ पर इन तीनों बार की लेंथ देख सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला बार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर स्टॉप हुआ है और सेकंड बार यहाँ से यहाँ तक और थर्ड वाला इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर स्टॉप हुआ है. इन तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी. Now we will clear the bar graph with the help of example. In this example, represent the data on a bar graph. In this example, number of children given according to the different classes. 135 for 5th class, 120 for 6th class, 95 for 7th class, 100 for 8th class, 90 for 9th class, 80 for 10th class. In this example, number of children represent the frequency of the given data. Now we will draw the bar graph according to given data. So first step is take axis, x-axis and y-axis. Along x-axis we take class and along y-axis we take number of children. So class is along x-axis and number of children is along y-axis. अब हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बार ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एक्सिस. Y-axis, then x-axis. Intersection of x-axis and y-axis is origin. Now we takes class along the
x-axis and number of children is along the y-axis. Number of children. Okay, student. Now mark the point on axis at equal gap. First point, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. Similarly on y-axis. Mark the point at same gap. First step is complete. Now for second step we choose scale. So for scale, first of all we check which is the greatest number in the given data. 135, 120, 95, 100, 90, 80. In this data 135 is greatest number. So greater than 135 is 140. So end the scale at 140 which is greater than 135. So we choose scale between 0 and 140. So bars lie between 0 and 140. But there are 6 classes. Therefore, we divide the scale in equal division. So use equal division along the axis. We take scale is 1 unit equals to 20 children. So mark the point starting from 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. Scale starts from 0 and end point is 140 and gap between these number is 20 because we choose scale 1 unit equals to 20 children. Therefore इस जो हमने स्केल चूज हमने किया है उसमें हमने 20-20 का गैप रखा है, जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140. आप देख सकते हैं कि जो ये एक बॉक्स है उसमें टोटल कितनी लाइंस हैं 10. जो ये स्मॉल लाइंस है आप एक बॉक्स में अगर काउंट करोगे तो टोटल कितनी लाइंस बनेगी 10. लेकिन हमने गैप कितने का लिया है 20-20 का गैप और टोटल लाइंस कितनी है 10. तो 20 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2. तो यानी कि जो एक सिंगल लाइन है वो कितने के इक्वल होगी 2 के इक्वल होगी. तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है 135 फॉर फिफ्थ क्लास. फर्स्ट पॉइंट 135 फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे ग्राफ में मार्क. तो 135 पॉइंट तक हमने बार ड्रॉ करना है. सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक हमें जाना है 135 तक. तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पॉइंट क्या है 0 और हमने यहाँ तक क्या लिया है 120. 120 के बाद हमने ये कहा था जो सिंगल लाइन है वो किसके इक्वल होगी 2 के इक्वल. तो अब 120 के बाद सिंगल लाइन क्या होगी 122 फिर 124 और फिर उसके बाद क्या होगी 126 128 130 130 कहाँ तक होगा यहाँ तक होगा. 130 के बाद 132 फिर 134 के बाद क्या आएगा 134 और 136 के बीच में जो एक पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 135. तो यहाँ से 0 पॉइंट से 135 पॉइंट तक हम क्या कर देंगे बार ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो आप और एक बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा किस क्लास के लिए फिफ्थ क्लास के लिए. और जो फिफ्थ क्लास है वो हमने कहाँ पर मेंशन करना है इस बार के बिल्कुल नीचे ड्रॉ करना है. तो अब नेक्स्ट हमें किसके लिए ड्रॉ करना है 6 क्लास के लिए. 6 क्लास के लिए कितना है 120. तो अब 120 के लिए हम बार ड्रॉ करेंगे तो हम 120 के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से. तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. कहाँ तक हमने लाइन लेके जानी है 120. सिमिलरली तो अब जो 120 लाइन है वो किस क्लास के लिए थी 6 क्लास के लिए. तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 क्लास. नाउ
नेक्स्ट इज 7th विच इज 95। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 95 तक हमने पॉइंट मार्क करना है और फिर क्या करना है, ड्रॉ, बार ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ में। तो अब देखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 95 तक हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो 95 देखेंगे कि किस पॉइंट पर मार्क करेंगे हम पॉइंट को। तो 0 यहाँ पर है और 80 यहाँ है। 80 और 100 के बीच में क्या आएगा, 90। तो 80 और 100 के बीच में 90 है और 90 के बाद हम काउंट करेंगे सिंगल लाइन 2 के इक्वल। तो 90 के बाद 92, फिर 92 के बाद 94, 94 के बाद 96। 94 और 96 के बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 95 का। तो हम इसके अकॉर्डिंग 0 से 95 तक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली फिर ये किसका बनेगा, 7th क्लास के लिए। 7th यहाँ हम नीचे लिख देंगे इसके लिए। ऐसे सिमिलरली हम 8th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए बार ड्रॉ करेंगे। 8 के लिए 100, तो हमने कैसे बार ड्रॉ किया, 0 से 100 तक क्या किया, 8 के लिए ड्रॉ किया बार और इसके नीचे क्या लिखा, 8। ऐसे ही 9th के लिए 90, 0 से हमने स्टार्ट करना है और 80 और 100 के बीच का जो पॉइंट होगा वहाँ पर मार्क करना है और बार ड्रॉ करना है। और 10th के लिए 80, 0 से 80 तक पॉइंट मार्क करना है और बार ड्रॉ करेंगे 10th के लिए। आई होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बार ग्राफ हमें कैसे ड्रॉ करना है। थैंक यू।